Hey guys, welcome back to my channel, and if you're new here, welcome to my channel. So today's video is a little different video, and in today's video I'll be sharing with you some products which didn't work for me or I didn't enjoy using them. पहली बार जब मैंने यूज़ किया तो I liked them, but later on I didn't reach out to them. So I have some products, mostly makeup products only. So I'll be sharing those products with you, and I'll be sharing why I didn't like them. One disclaimer before going into the video, it's not like I hate these brands or I'm bashing them. I like many other products from these brands. I really enjoy them, but ये कुछ ऐसे products हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगे और I didn't like them. So without any further ado, let's start scrolling. So the first product is this. This is Makeup Revolution Conceal and Define Foundation. पहली प्रॉब्लम इस फाउंडेशन के साथ ये हुई कि आई ऑर्डर द रॉन्ग शेड. आई ऑर्डर द शेड F8 विच इज़ वेरी लाइट फॉर मी. आई थिंक F10 और F10.5 वुड हैव बीन अ गुड मैच फॉर मी. बट जो शेड चार्ट है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है. उससे आपको इजीली पता नहीं चलता है कि कौन सा जो फाउंडेशन है वो आपको मैच करेगा. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बाय दिस फाउंडेशन ऑनलाइन. एंड जो इस फाउंडेशन की अंडरटोन है दैट ऑल्सो इज़ नॉट वेरी क्लियर. मोस्टली जो फाउंडेशन है वो पिंक अंडरटोन्स के साथ है. बट दैट वॉज नॉट द ओनली थिंग वाई दिस फाउंडेशन डिड वर्क फॉर मी. So they claim that this give you demi matte finish, but I don't think it gives you demi matte finish. It gives you a matte finish. And also this foundation was making my skin look very dry. It was clinging to the dark patches and it was making my face look very dry. I don't have very dry skin. My skin is combination, but still this foundation was making my skin look very dry. It also sets into my fine lines and creases very quickly, and this is very expensive as well. I think in India it retails for 1400 I guess. So according to me this foundation is not worth the money you are paying. So the next product is this concealer from Blue Heaven. I recently tried this concealer from Blue Heaven. This is their new launch. This is a very affordable concealer. I guess this retails for only 150 rupees or something, but it doesn't work. मुझे कंसीलर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. They claim that it is a full coverage concealer, but it doesn't give you any coverage and it sets very quickly. आप इसको अप्लाई करेंगे और आपको जल्दी से उसको ब्लेंड करना पड़ेगा. अगर आप थोड़ा सा भी इसको रहने देंगे अपने फेस पे तो यू वोंट बी एबल टू ब्लेंड दिस कंसीलर. जब इस कंसीलर को आप ब्लेंड करेंगे इट विल मूव फ्रॉम इट्स प्लेस. ऑल्सो जो फाउंडेशन आपने इसके अंडरनीथ अप्लाई किया होगा इट विल मूव दैट एज वेल एंड इट लुक्स वेरी पैची. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू blend this concealer and I didn't like this concealer at all. It is affordable and all, but why would you waste 150 rupees for such kind of product? I think you can easily get better products. Now let's talk about other concealer which didn't work for me, and that is this पैक स्पॉटलाइट कंसीलर. मुझे पैक के जनरली सारे प्रोडक्ट काफ़ी पसंद आते हैं. सो पैक ने ये कंसीलर काफ़ी टाइम पहले लॉन्च किया था एंड दे हैव लॉन्च्ड मेनी शेड्स इन दिस कंसीलर. और जब मैंने इसको पहली बार ट्राई किया था आई लाइक दिस कंसीलर, बट उसके बाद मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं आया. जो इसके अंडरटोन है वो येलो अंडरटोन है, बट इट इज़ टू येलो. आई फील इट इज़ टू येलो. लाइक सॉरी देयर आर swatches from the other video. So this is how it looks. I feel it's very yellow and it is very thick as well. तो ये natural नहीं लगता है फेस पे. मतलब बहुत ही ज़्यादा unnatural सी फिनिश आती है इसकी. That's why I don't reach out for this concealer. I think मैंने इसको 2-3 बार ही यूज़ किया है, but because of this very yellow undertone मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ. तो इट्स नॉट लाइक इट्स अ बैड प्रोडक्ट. बहुत सारे लोगों के लिए ये जो कंसीलर है वो काफ़ी अच्छे से काम करता है. And there are many people who love this concealer, और I also liked it when I used it for the first time. But उसके बाद I don't know, this too yellow undertone it didn't work for me, और ये उतना natural भी नहीं दिखता है face पे, तो that's why I don't like it. But it's not a bad product, just that it didn't work for me. So the next product is also from PAC, which is this PAC Steel Wheel Eyeliner. तो ये आईलाइनर भी उन्होंने काफ़ी टाइम पहले लॉन्च किया था, और इसकी स्पेशल बात ये थी कि इस लाइनर में आपको इस तरह का एप्लीकेटर मिलता है which is a wheel kind of applicator. तो आइडियली ये एप्लीकेटर क्या करना चाहिए, आपको हेल्प करना चाहिए टू अप्लाई द आईलाइनर. मतलब इससे आपका आईलाइनर काफ़ी इजीली अप्लाई हो जाना चाहिए, बट मुझे ऐसा नहीं लगा कि इट हेल्प्स. मतलब ये जो इसके अंदर व्हील रहता है उससे आईलाइनर को अप्लाई करना मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है. एंड बिकॉज ऑफ हैविंग दिस काइंड ऑफ एप्लीकेटर जो पिगमेंटेशन है ये आईलाइनर की उतनी अच्छी नहीं है. मतलब अगर ये नॉर्मल ब्रश होता है इस आईलाइनर में, जैसा नॉर्मली ब्रश आते हैं उस तरह की टिप होती है अगर इस आईलाइनर की, इस एप्लीकेटर की, तो इसकी जो पिगमेंटेशन है वो काफ़ी अच्छी हो सकती थी. बट बिकॉज ऑफ दिस स्टील व्हील एप्लीकेटर जो इसकी पिगमेंटेशन उतनी अच्छी नहीं है और ये उतना ज़्यादा हेल्प भी नहीं करता है. तो इस तरह के एप्लीकेटर होने का क्या मतलब है. मतलब
सिर्फ इतना है कि आपको एक स्वाइप में, मतलब सिर्फ इतना सी बात है कि आई थिंक इस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट ऐसे हाथ पे अप्लाई करना इसको ईजी है, बट जब आप इसको आइज़ पे अप्लाई करते हैं, हमारी आइज़ की जो स्किन रहती है वो इतनी स्मूथ नहीं होती है, तो इस तरह का एप्लीकेटर आई डोंट थिंक कि आइज़ पे अप्लाई करने के लिए अच्छा है, तो आई डेंट लाइक दिस. It's very difficult to control the application because of this applicator, and you will have to work a lot to get a good pigmentation, a nice application on your eyes. Since हम पैक के ही प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो there is one more product from पैक which I didn't like, and that is their Sweet Sensational lipstick. The very first thing which I didn't like about this lipstick is the packaging. ये जो पैकेजिंग है ये टोटल रिप ऑफ है निक्स सॉफ्ट मैट लिप क्रीम की. पैक एक काफ़ी अच्छा ब्रांड है, तो उनको क्या नीड थी निक्स की ये पैकेजिंग की कॉपी करने की. आई डोंट गेट दिस. मतलब वो अपनी कोई पैकेजिंग में ये प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते थे. दे डिडंट एक्चुअली नीड टू कॉपी दिस पैकेजिंग फ्रॉम निक्स. मिक्स क्लियर की भी लिपस्टिक्स आती हैं विच एग्जैक्टली लुक्स लाइक निक्स सॉफ्ट मैट लिप क्रीम, बट ओके मिस क्लियर इज़ अफोर्डेबल ब्रांड एंड दैट्स इंडी ब्रांड, तो उन्होंने उसकी पैकेजिंग रिप ऑफ की है. आई कैन गेट दैट, बट पाक वाई दे नीड टू डू इट, आई डोंट गेट इट. So that was the first thing which turned me off. Other thing which I didn't like about this lipstick is the finish of it. So it has this powdery kind of finish to it which I don't like. The pigmentation and all is very good. It's highly pigmented और आपको एक ही स्वाइप में काफ़ी अच्छा पिगमेंटेशन मिलता है, बट जो इसकी फिनिश है, जो पाउडरी फिनिश है, वो आई डेंट लाइक. मतलब मुझे इस तरह की फिनिश पसंद नहीं है लिपस्टिक में, एंड ये कलेक्ट हो जाती है आपके लिप्स पे, क्रमली हो जाती है, एंड आप इसकी सेकंड लेयर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप सेकंड लेयर अप्लाई करने की ट्राई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्रमली हो जाएगी एंड बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी. उसके अलावा एक और चीज़ है कि ये जो लिपस्टिक है वो कलर कोडेड है, बट इट डजंट मैच विद द एक्चुअल कलर ऑफ द लिपस्टिक. लाइक आई स्वॉच्ड दिस राइट एंड यू कैन सी ये बिल्कुल भी मैच नहीं करती है इससे. एंड जो शेड रेंज है इस लिपस्टिक में वो भी यूनिक नहीं है, मतलब नॉर्मल से शेड है, जनरल शेड आपको मिलते हैं इस लिपस्टिक के अंदर. एंड आई लाइक ओनली वन शेड विच इज़ सैवेज एंड आई हैव दैट शेड ओनली, बट सिंस इसकी जो पाउडर मैट फिनिश है वही मुझे अच्छी नहीं लगती है, और वो जो क्रम्बली सा जो इसका फॉर्मूला है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आई डोंट रीच आउट फॉर दिस लिपस्टिक. एंड या आई थिंक ये ड्राई भी होने लगी है ऑलरेडी, बिकॉज मैंने शायद इसको मैंने इस पर एक डिटेल रिव्यू शेयर किया है. आई थिंक मैंने तभी इस लिपस्टिक को यूज़ किया था, उसके बाद मैंने इस लिपस्टिक को कभी यूज़ नहीं किया, बिकॉज मुझे ये जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर प्रोडक्ट्स. सो आई हैव फ्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम नायका एज वेल. सो फर्स्ट इज दिस लिपस्टिक फ्रॉम नायका. ये जो लिपस्टिक है इसकी पिगमेंटेशन अच्छी नहीं है. इट गिव्स यू अ वेरी sheer कवरेज एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड अप द कवरेज ऑफ दिस लिपस्टिक, बिकॉज फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको ज़्यादा अच्छी पिगमेंटेशन नहीं मिलती है इस लिपस्टिक के साथ, एंड ये ड्राई होने में भी काफ़ी टाइम लेती है, तो आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग द सेकेंड लेयर ऑफ द लिपस्टिक टू बिल्ड अप द कवरेज. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड अप द कवरेज विद दिस लिपस्टिक बिकॉज द कवरेज इज नॉट वेरी गुड. द स्टेइंग पावर ऑफ दिस लिपस्टिक इज ऑल्सो नॉट गुड. इट स्टेज फॉर मैक्सिमम 3 to 4 hours, एंड इफ यू आर ईटिंग और ड्रिंकिंग समथिंग ये और भी जल्दी फेड हो जाएगी, तो स्टेइंग पावर भी इस लिपस्टिक की ज़्यादा अच्छी नहीं है. ऑल्सो द शेड रेंज इज़ नॉट इम्प्रेसिव, मतलब बहुत ही बेसिक से शेड हैं, कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया नायका ने इस शेड रेंज में. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस लिपस्टिक के साथ मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस है, और जो फ्रेगरेंस है वो पूरे टाइम तक रहती है. फॉर द होल टाइम यू आर वेयरिंग दिस लिपस्टिक वो जो फ्रेगरेंस है वो आपको फील होती रहेगी, एंड दैट डजंट वर्क फॉर मी. मैं स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस जो रहती है वो मुझे सूट नहीं करती है, मुझे माइग्रेन हो जाता है, तो that also is one of the reason why I didn't like this lipstick. I have one more product from Nykaa which is this nail pen remover. I bought this nail pen remover long time back, और इसको देख के आपको लग रहा होगा कि ये कितना सा ख़त्म हुआ है, बिकॉज मैंने इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, कि 1 या 2 बार यूज़ किया होगा, एंड उसके बाद मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया बिकॉज इट डजंट वर्क. मतलब बिल्कुल भी काम नहीं करेगा. ये नेल पेन रिमूवर क्यों बोला है इसको आई डोंट नो, बिकॉज नेल पेन तो बिल्कुल भी रिमूव नहीं होती है इससे. मैंने इसको काफ़ी ट्राई किया है, मतलब मैंने इसको 2-3 बार ट्राई करके देखा है कि हो सकता है कि नेल पेंट ऐसी हो कि इजीली रिमूव नहीं हो रही है, बट इट डजंट वर्क एट ऑल. ये बहुत ही बेकार प्रोडक्ट है. मतलब आई थिंक नायका का सबसे वर्स्ट प्रोडक्ट है जो मैंने ट्राई किया है ये नेल पेंट रिमूवर. ये बिल्कुल भी काम नहीं करता, तो यू शुड नॉट वेस्ट योर मनी ऑन दिस प्रोडक्ट. दिस इज अ वेरी बैड प्रोडक्ट. सो द नेक्स्ट थिंग विच डिडंट वर्क फ्रॉम मी इज द कलेक्शन फ्रॉम NYB, their collaboration with Shakti. I have done a detailed review on that collection on my channel. I'll link that video
in the description box and here as well, so you can check that. You can check the detailed review. But that also didn't work for me. I think they launched 4 products in this collection and I tried 3 of them. I tried the lipsticks, both the lipsticks, the bullet lipstick and the liquid lipstick and liners as well. एंड कोई भी प्रोडक्ट उसमें से मेरे लिए वर्क नहीं. आई हैड मोर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दैट कलेक्शन, बट जो सारे ही प्रोडक्ट थे वो बहुत ही एवरेज थे. मतलब जो बुलेट लिपस्टिक है उसकी पिगमेंटेशन कुछ खास अच्छी नहीं है, जो स्टेइंग पावर है वो भी अच्छी नहीं है. वो भी मतलब 3 से 4 घंटे के लिए स्टे करेगी, और अगर आप कुछ खा रहे हैं या इफ यू आर ईटिंग और ड्रिंकिंग समथिंग तो वो और भी जल्दी फेड हो जाएगी. सो दैट्स व्हाई आई डिडंट लाइक इट. और जो प्राइस आप पे कर रहे हैं उस प्राइस में आपको बेटर लिपस्टिक्स मिल सकती हैं. जो लिक्विड लिपस्टिक आती है इस कलेक्शन में उसकी पिगमेंटेशन अच्छी है, उसकी स्टेइंग पावर भी ठीक ठाक है, बट जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है उस लिपस्टिक में. और जो प्राइस आप पे कर रहे हैं उसके अंदर जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो बहुत ही कम है. आई थिंक फॉर द सेम प्राइस यू कैन गेट बेटर लिपस्टिक्स और विद बेटर एप्लीकेशन, विद बेटर स्टेइंग पावर एंड ऑल दोज थिंग्स. सो और ऑल्सो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ड्राई भी फील होती है लिप्स. एंड द नेक्स्ट थिंग विच इज़ देयर इन द कलेक्शन आर द लाइनर्स. वो लाइनर भी बिल्कुल अच्छे नहीं थे. मतलब इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई दैट लाइनर. उसके साथ काफ़ी काम करना पड़ रहा था. उसका जो एप्लीकेटर है जो आपको मिलता है लाइनर के अंदर, दैट्स वेरी फ्लिम्सी एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई लाइनर यूजिंग दैट एप्लीकेटर. स्पेशली विंग क्रिएट करना तो बहुत ही डिफिकल्ट है उस तरह के आईलाइनर से. तो मुझे वो आईलाइनर अच्छा नहीं लगा, और जो स्टेइंग पावर है वो भी कुछ खास अच्छी नहीं थी. सो ओवरऑल आई डिडंट लाइक दैट कलेक्शन मच. So the next product which didn't work for me are these wipes from Mamaearth. This is how it looks. So these are Mamaearth organic bamboo based wipes. These are organic wipes, that's why I wanted to try these wipes. And this one retails for 249 rupees and you are getting 72 wipes in this. बट ये वाइप्स बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं करते. मतलब इनसे बिल्कुल भी प्रोडक्ट रिमूव नहीं होता है. गेट दिस काइंड ऑफ वाइप इन दिस पैकेट. ये इसका साइज है वाइप का, बट ये जब इसको फील करता है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है. और एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक ऑफ द मेकअप विद दिस वाइप. ये बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं करता है. मैं आपको अभी डेमो दे देती हूँ. लाइक मैंने ये स्वॉचेस करे हुए हैं, तो आई जस्ट ट्राई टू रिमूव इट. सी इट्स स्टिल देयर. मतलब इतनी देर में तो पूरा मेकअप रिमूव हो जाना चाहिए था, बट ये बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं करता है. आपको बहुत ज़्यादा रब करना पड़ेगा टू रिमूव एनीथिंग. अगर दूसरे वाइप आप अगर यूज़ करेंगे तो इजीली ये चीज़ रिमूव हो जाएगी एक ही बार में, बट इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा. और स्टिल देखो ये अभी तक अच्छे से रिमूव नहीं हुआ है एंड ये ऑलरेडी ड्राई फील हो रहा है. मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ही नहीं है, और जो भी प्रोडक्ट है उससे वो भी कुछ खास काम नहीं करता है. तो दैट्स व्हाई दिस वन डिडंट वर्क फॉर मी. So that was the last product which I wanted to share with you guys. So yeah, that's all for today's video. I hope you liked this video and enjoyed it. If you did, please like and share this video. Also subscribe to my channel if you haven't done already. And don't forget to press the notification bell so that you will be notified for my future uploads. Thank you so much for watching this video. I'll see you in my next one. Till then, take care. Bye.